Hello students, welcome to English Reader class. Today we will start our chapter number 7, The Adventure of Huckleberry Finn. So let's start the chapter. First we read about the background. The Adventure of Huckleberry Finn is a novel written by American author Mark Twain in 1884. It is written in the form of a narrative by Huckleberry Finn. Huck to his friends, who is a 13 years old boy who lives with his garden widow Douglas and her sister Miss Watson. He dislikes Miss Watson as he is extremely strict. The extract below shows Huckleberry Finn and his friends Tom Sawyer sneaking away from their houses and setting out on the adventurous journey with their friends. Read now. तो हमने क्या पढ़ा, ये जो एडवेंचर्स ऑफ हकबरी है वो नॉवल है. किसने लिखा? अमेरिकन ऑथर ने, मार्क ट्वेन ने. इन किस ईयर में? 1884 में. तो उसने उसके बारे में, उसकी फैमिली के बारे में बताया गया है. वो कितने ईयर्स का था? 13 ईयर्स ओल्ड था. उसकी गार्डियन कौन थी? विडो डगलस. एंड उसके साथ कौन रहता? उसकी सिस्टर एंड मिस वैटसन, जो कि वो मिस वैटसन को लाइक नहीं करता था. ये भी हमें बताया गया. वो वेंट tiptoeing means walking on toes along a path amongst the trees back towards the end of the widow's garden. Stooping means bending forwards down so as the branches would not scrape our heads. Scrap means rub by accident. When we were passing by the kitchen, I fell over a root and made a noise. We crouched means kept legs bent so the body was closer to the ground, down and laid still. Miss Watson's big helper named Jim was sitting at the kitchen door. We could see him pretty clear because there was a light behind him. तो इसमें क्या बताया गया कि वो वहाँ पे जा रहे थे वॉकिंग, अपने पैरों के जो टो होते हैं, जो पैरों का मूली फिंगर्स होती हैं, उस पे जा रहे थे. किसके लिए? विडोज़ के गार्डन में स्टूपिंग करने के लिए छुप के जा रहे थे. तो उसको विंडोज़ लगी, ब्रांचेस लगी उसके सिर पे. तो उन्होंने किचन के पास से निकल रहे थे तो उनकी रूट्स की आवाज़ आई. तो उन्होंने क्या देखा था कि मिस वेस्टन की जो हेल्पर थी, जिसका नाम जिम था, वो किचन के आगे बैठी थी. तो उनको वो प्रिटी क्लियर, मतलब बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे थे क्योंकि वहाँ पे लाइट जग रही थी. ही गॉट अप एंड स्ट्रेच्ड हिज नेक आउट अबाउट अ मिनट लिसनिंग. देन ही से हुडा, द मीन्स देयर. उसने क्या बोला? वो उठा और उसने अपनी नेक को स्ट्रेच किया और 1 मिनट इधर उधर देखा, उसको सुनाई दिया कुछ और उसने बोला कि वहाँ पे कौन है. He listened for some time, then he came tiptoeing down and stood right between us. We could have touched him nearly. Well, likely it was minutes and minutes. Wasn't any sound, and we all there so close together. There was a place on my ankle that got it. Got it means started to itching, but I did not scratch it. And then my ear began to itch, and next my back, right between my shoulders. It seems like I would die if I couldn't scratch. Pretty soon, Jim says. तो इसमें क्या बताया गया? उसने सुना कि उसने अपने टिपटोइंग, जैसे कि उसने अपने फ्रंट पैर के ऊपर से चलना शुरू कर दिया और वो उनके बीच में आके खड़े हो गए और वो उनको फील कर रहे थे, टच कर सकते थे, कि उसको ऐसा लग रहा था कि वो अभी आ जाएंगे, मगर उनकी कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी और वो बिल्कुल उसके क्लोज थे. तो उसने क्या किया? उसके एंकल पे थोड़ी सी इचिंग होनी शुरू हो गई. तो वो स्क्रैच नहीं कर पा रहा था, वहाँ पे खुजली नहीं कर रहा था. फिर उसके कान पे उसको इचिंग होनी फील हुई, फिर उसकी बैक पे हुई, पर फिर उसके शोल्डर के बीच में होने लगे. तो बट उसे लग रहा था कि वो अगर स्क्रैच नहीं कर जाए तो वो जल्दी ही मर जाएगा. तो ये किसने बोला था? जेम्स सेज ने. सेज, हु इज़ यू, वेयर इज यू. वो मीन्स वेयर. तो उसने कहा कि हु यू, कौन हो आप? Where is you? कहाँ हो आप? Then he sat down on the ground between me and Tom. He leaned his back up against a tree and stretched
his legs out till one of them almost touched one of mine. My nose began to itch. It itched till the tears came into my eyes, but I didn't scratch. Then it began to itch on the inside. Next I go to itching underneath. I didn't know how I was going to sit still. This miserable illness went on as much as 6 or 7 minutes, but it seems much longer than that. I was itching in 11 different places now. I reckoned I couldn't stand it more than a minute longer, but I set my teeth hard and got ready to try. Just then Jim began to breathe heavy, next to begin to snore, and then I was pretty soon comfortable again. Means thought. Recount. वो वहाँ पे ग्राउंड पे बैठ गई, हमारे बीच में बैठ गया और उसने क्या किया, अपनी जो बैग थी उसको ट्री के साथ स्ट्रेच करना शुरू कर दिया और उसने अपनी लेग्स को स्ट्रेच कर लिया, सीधा कर लिया और देखा कि उसकी जो एक पैर था वो उसको टच कर रहा था, उसकी नोज़ तो उसका जो लेग्स थी उसको टच कर रही थी और उसकी नोज़ पे इचिंग हो रही थी और उसने की इचिंग की वजह से उसकी आइज़ में से टीयर आ रहे थे, तो उसने इचिंग करना इन साइड से शुरू कर दिया। तो नेक्स्ट उसने क्या किया, इचिंग करके अंडरनीथ, तो उसको लगा कि अभी वो क्या कर सकता है, तो मिसरेबलनेस एज अ 6 और 7 मिनट्स उसने ऐसा किया और उसको रिलैक्सिंग फील हुआ और 11 डिफरेंट प्लेसेस उसने इचिंग की थी और उसको ऐसा लग रहा था कि अब वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, बट वो अपने जो उसने अपनी फिंगर्स थी उसको अपने टीथ के बीच में दे रखा था ताकि वो ट्राई कर सके। हैवी ब्रीथ लिया उसने एंड नेक्स्ट वो चलना शुरू कर दिया और वो थोड़ा कंफर्टेबल फील हो गया। Tom made a sign to me, kind of little noise with his mouth, and we went creeping away on our hands and knees. Then Tom said he did not got candles enough and he would slip in the kitchen and get some more. I didn't want him to try, but Tom wanted to risk it, so we slid in there and got 3 candles and Tom laid 5 cents on the table फॉर पे। तो उसने क्या किया, उसको साइन किया कि उसकी वो नॉइस ना करे, उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसके हैंड्स और नीज़ में थोड़ी क्रीपिंग हो रही थी और उसने कितनी कैंडल्स, उसने बोला कि वो इनफ कैंडल्स नहीं लेके आ रहा है, तो वो वहाँ पे स्लिप हो गया था किचन में, इस वजह से वो दोबारा ट्राई ना करे क्योंकि वहाँ पे जाना रिस्क होता है। तो टॉम वहाँ पे गया और उसने 3 कैंडल्स ली और उसने वहाँ से 5 सेंट भी ले लिए उसको पे करने के लिए। एज सुन एज टॉम वाज बैक वी कट अलॉन्ग द पाथ अराउंड द गार्डन फेंस। Cut along means hurried away. Tom set the slipped Jim's hat off his head and hung it on a limb. Limb means a large branch of a tree. Light over him and Jim stirred a little, but he didn't wake. Afterwards, Jim said the witches put under a spell him and put him a trance. Trance means state of being hypnotized. And rode him all over the stage and then set him under the trees again and hung his hat on a line to show who did it. तो उसमें उसने क्या किया, उसने जल्दी जल्दी से उसको ले लिया और वो अपने गार्डन के फेंसेस पे चले गए। टॉम सेड वहाँ पे स्लिप्ड हुआ जिम को, उसको हैट था जो वो वहाँ पे उसने अपनी जो हैट थी वहाँ पे रख दी एक बड़ी सी ब्रांच के ऊपर। उसको लगा कि वहाँ पे कुछ बीचेस हैं, तो वो वहाँ से चले गए एंड उन्होंने एक रॉड के साथ उसके ऊपर से स्टेट किया एंड सेट हिम अंडर ट्रीज अगेन, और वहाँ पे ट्रीज के अंदर बैठ गए और अपनी जो उसने हैट थी उसको शो किया कि कैसे उसने ये किया है और उसने अपनी हैट को हेड ऑफ किया था। तो उसने बताया था कि ये सब उसने किसने किया है। टिक द स्टेटमेंट्स दैट वर अ पार्ट ऑफ टॉम स्वेयर्स ओथ। इसमें से वो टिक करने हैं जो कि टॉम स्वेयर्स को ओथ करते हैं। अ डैगर वुड बी द मार्क ऑफ द टॉम स्वेयर्स गैंग, नो। एनी नन मेंबर हु यूज्ड अ बैंड्स मार्क would be killed at once, no. All the members would have to write their names in blue ink, no. A member who revealed the band's secrets would be pushed off the cliff, no.
All the boys needed to swear to stick to the band true. A boy who was ordered to kill the enemies and their families would not drink water until he did so. Question answer. Who was Jim? Where was he when Huckleberry Finn saw him? Jim works for Miss Benson. Huckleberry Finn saw Jim as he was passing by the kitchen of Miss Benson's house. Jim was sitting at the kitchen door. He was clearly visible because of there was a light behind him. जो जिम था वो मिस बेसन के लिए वर्क करता था. जब वहाँ से फिन निकला था तो उसको वो किचन के पास बैठा था मिस बेसन के हाउस में. तो उसने देखा कि वो जिम कि यहाँ पे था किचन के डोर के पास बैठा था. वो बिल्कुल उसको विजिबल था क्योंकि उसके पीछे लाइट जल रही थी. इन हाउ मैनी प्लेसेस वाज Huckleberry Finn finally itching? While Huck and Tom were crouching quietly near Jim and hiding from him, Huck's ankle started itching. Then his ear and his back also started itching badly. He could not scratch the itch because the sound would have attracted Jim's attention. Then his nose and his underneath also started itching. This lasted for almost 6-7 minutes, but Huck overcome it by setting his teeth hard and resisted the urge. तो जो हक एंड टॉम वहाँ से जा रहे थे जिम्स के पास से, तो वो अपने आप को हाइड कर रहे थे जिम से. तो उन्होंने कि क्या हुआ था, पहले उसकी एंकल पे स्टार्टिंग हुई थी इचिंग, फिर उसके ईयर्स एंड बैक पे स्टार्टिंग हुई, फिर बट वो स्क्रैच नहीं कर सकता था, इचिंग नहीं कर पा रहा था. तो उसको क्योंकि उसको लगता था कि वो अगर स्क्रैच इचिंग करेगा तो जिम की अटेंशन उसकी तरफ आएगी क्योंकि उसकी वजह से आवाज़ होगी. तो फिर उसकी नोज़ पर और फिर उसके पूरी बॉडी पे इचिंग होने लगी. और ये सब लास्ट 6 to 7 मिनट तक हुआ था, बट उसने अपने टीथ को बहुत हार्डली कंट्रोल कर रखा था. What did Tom do? Jim's hat. Jim was sleeping beneath a tree with his hat still on his head. Tom took Jim's hat off his head and hung it on a branch above his head in order to confuse and scare him. तो जिम की जो हैट थी उसको ऐसा टॉम ने क्या किया था, टॉम ने जिम की हैट को उस ट्री से लिया और उसके हेड से लिया और उस ट्री पे रख दी. वहाँ पे उसके हैट को एक उसकी सिर की तरह से लटका दिया और एक ब्रांच के ऊपर, जिसकी वजह से जिम कंफ्यूज हो जाए और स्केयर करे और डर जाए. What was Jim's story about falling asleep in the garden? When Jim woke up, he found his hat hanging on a branch above his head. He then told everyone that he was sleeping, witches had bewitched him and put him in a trance. He said that they rode him over the country. Then they put him down by the tree again and hung his hat on a branch on as is their mark. जब वो जिम उठा था उसने अपनी हैट को फाउंड किया. उसको पता चला कि उसकी जो हैट है वो वहाँ पे ब्रांच पे रखी हुई है. जब वो सो रहा था उसको लगा कि कोई विचेस आई थी जिसने उसके साथ ऐसा किया है और वो वहाँ पे एक रॉड के थ्रू उसने रख दी होगी. एंड जब उसने उसको डाउन किया अगेन तो उसकी हेड को फिर से ऊपर चले गया और उसको लगा कि ये किसी का कोई साइन है. Who was hiding in the tan yard? Why? Tom and Huck's friends were hiding in the tan yard. They was waiting for Tom and Huck to come so they could all go to cave and have their secret meeting. टॉम एंड हक के फ्रेंड्स हाइडिंग थे कहाँ पे, टैन यार्ड में. तो वो उनकी वहाँ पे वेट कर रहे थे टॉम एंड हक की कि वो आएंगे तो वो केव में जाएंगे और अपनी सीक्रेट मीटिंग को स्टार्ट करेंगे. होप you guys understand all the chapter, all the question answers. Thank you. Have a good day.